Give a brief account of information about yourself. Sir, I have completed my graduation in agriculture in 2022 from Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya, Uttar Pradesh. Sir, I have completed elective learning program in apiculture and a 6-month training program in mushroom production with mushroom seed production unit of the university. And in the 2024, this year, I have completed my post-graduation in genetics and plant breeding from Institute of Agricultural Sciences, BHU. Okay. You mentioned that you have passed your agriculture graduation from Acharya Narendra Dev University, right? Yes, sir. Okay, tell us something about the major contribution of Acharya Narendra Dev towards the country. Sir, Acharya Narendra Dev was a great nationalist and he has contributed a lot in the field of agriculture because during the Swadeshi movement, he built Hindi medium colleges and schools in Faizabad district. And he was 7th Vice Chancellor of Banaras Hindu University also. He was the first professor of Lucknow Montessori College. And later in 1975, our university was named upon his name, Acharya Narendra Dev. Okay. He established a party during freedom struggle. Can you name that? Yes, sir. Congress Socialist Party, 1934. Very good. This is enough. Okay, about him. You passed from Ayodhya. Yes, sir. What's the climatic condition there? Sir, it is a semi-arid to subhumid condition. Very good. The temperature remains between 35 to 47 degrees Celsius in summers and 10 to 16 degrees Celsius in winter season. What are the major vegetable crops there? Sir, vegetable crops like potato, onion, bottle gourd, and pumpkins, and turmeric, ginger, and colocasia or futiums are grown in vegetables. And fruits? Sir, fruits like bear, amla, bale, jackfruit, falsa, pear, and guava. Can you name the nutrition value of jackfruit? Yes, sir. Jackfruit it has a lot of fiber content, and it is nowadays is tagged as superfood because of the fiber content, and it can be a good replacement of meat. Uh, Which one this is is your all. favorite? क्या sir? Which one is your favorite? Sir, my favorite is makhana. Makhana. That's very good. Uh, Please elaborate the nutritional value of makhana. Sir, makhana first of all has very high fiber content. The fat content is 0.1%, and the essential amino acid content is nearly 93.8%, which is comparable to the nutritious amount of fish. Also, sir, it has low glycemic index, due to which the sugar level does not spike instantly in the body. Instead, it is absorbed slowly. Also, there are no sodium ion, and there is nearly 600 milligram per 100 gram of potassium ions, due to which blood pressure is controlled. Also, a lot of vitamins and Very good, micronutrients very are good, found very in good, very good, makhana. very good, very good. Okay. Now you tell me about the specialization in masters. Sir, my specialization is in genetics and plant breeding. Genetics. Yes, sir. Very good. Then you must know about the mm, physiological process and chemical process within the cell. Yes, sir. What is that? Yes. Sir, you are asking about physiological process of? You have to tell me about phenotypic and genotypic ratio. Okay. Sir, the ratio which is depicting the population of the ratio which describes the frequency of genotypes is called the genotypic ratio, and the ratio which describes the frequency of phenotype is called the phenotypic ratio. For Actually, example, that is clear from the word. What does it actually means? Genotypic ratio, what does actually means? During this graph, what is prescribed? What is stated? sir, Why what you a are genetic asking? why a genotypic chart is prepared? What's the reason behind that? To show?
Sir, to show the segregation of genes in the progenies. Very good, very good. Now tell me, which theory is considered as the first modern theory regarding the evolution? Modern theory, I'm saying the modern theory. क्या सर क्या? Which theory is considered as the first modern theory of evolution? Sir, theory of Darwinism and theory of Lamarckism. Which one is first? Sir, theory of Darwin is first. Very, Survival of the fittest. very bad. Not good. Lamarckism. Okay. What was Lamarckism? Sir, Lamarckism is about the inheritance of acquired characters Very in the good. environment. Very good. That was latter, not established. Okay. And second one is Darwinism, sir. yes, sir. What's that theory? Sir, which theory, sir? What was the theory of Darwin? Sir, survival of the fittest. Struggle for existence, survival of the Huh. fittest. That means natural selection. Yes, sir. And after that, these two steps, the theory of genetics was established by whom? Sir, Gregor John Mendel. Very good. What was his principle and laws? Sir, his main contribution was he said that genes have two forms. Just say me what's the principle and law of Mendel? Sir, Mendelism has the three laws: laws of dominant, law of independent assortment, and law of segregation of characters. Are you sure that you are mentioning in right step? Sir, law of dominance, Right? law of segregation, Yes. and law of independent assortment of characters. Yes. This is a proper step. So, okay. Yes. चलिए बहुत बढ़िया मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया शानदार है आप पूछिए अब ये तो धूम मचा देगी Can you define heterostyle? What, sir? Heterostyle को define कीजिए. Heterostyly. हाँ. Sir, heterostyly is the relative position of the style in the फ्रीज हो गया है. बहुत अच्छा है इसका कोई दिक्कत नहीं बंद कर दीजिए इसका आ गई रिचर्ड वो हाँ चलो फिर से डिफाइन करो. नहीं आ Sir, रहा. heterostyly is defined as a relative position of the style with respect to anther in a flower. Okay. In which cross-pollinated vegetable crop in breeding, ठीक है, depression is highest? Sir, I think carrot. Yeah, very good. The first to report heterosis in which crop? The heterosis was first reported by Hull in maize. Maize Yes, sir. या cucumber? Jones and Hens 1916. Sir, Hull has defined it in 1945 in maize. यहाँ पे मैंने दो नेम लिया है, Hens and Jones. Okay. ठीक है. अच्छा ये मेल स्टेरिलिटी इन कैरोट किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया? सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. कोई बात नहीं Which type of self incompatibility is found in tomato? Sir, it is gametophytic type of self incompatibility. हो गया इनका फैक्ट अब मत पूछिए फैक्ट बहुत हो गया ये सब बता देगी कोई इशू नहीं है इसको अब बताइए बीएचओ के रूप में आपका हुआ है चयन ना हाँ सर. ओके गेट रेडी टू ज्वाइन Thank you, sir. now let me know what will be your priority in that area where you have been established at BHO.
समझ सर गई ना? मेरी DSU प्रायोरिटी बना दिया जाता है कहीं ब्लॉक में, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? सर मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं किसान को अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल दिलाऊं, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे। और दूसरा सर, जो उनका प्रोड्यूस तैयार हो जाता है, क्रॉप प्रोड्यूस, तो क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो होता है वो पेरिशेबल होता है, तो उसको मार्केट मिले टाइम से, तो इसलिए मैं अपने ब्लॉक में एफपीओज और एफपीसीज का निर्माण करूंगी, देखिए दैट आप इज लोग सभी, फार्मर प्रोड्यूसर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बोल देता हूं कि इफ यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू मेंशन आई विल फुलफिल माय ओल्ड ड्यूटीज अंडर द राइट्स गिवन टू मी बाय द गवर्नमेंट। पहला लाइन यही होना चाहिए। ओके इसको सर। हिंदी में क्या बोलेंगे? दूसरा चीज, मैं अपने कर्तव्यों का, जो मैं अपने कर्तव्यों का उन अधिकारों के अंतर्गत पूर्ण निर्वहन करूंगी जो मुझे सरकार के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैं, अब यहां बोलिएगा, जो फैसिलिटीज दी गई हैं, जो स्कीम्स चलाई गई हैं, हमेशा इस लाइन को आप लोग जोड़िएगा, क्योंकि आपके अपने इंस्टीट्यूट का लाइन है, कहीं से लिया नहीं गया है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है ना? मुझे जो यस सर। अधिकार दिए गए हैं उसके अंदर रहते हुए मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। इसमें एक सेंटेंस और जोड़ लेना। सही समय पे सही व्यक्तियों तक सरकार के कार्यक्रमों का, स्कीम्स का, उनको हम लाभ दिलवाएंगे, है ना? सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सही समय पे पहुंचना चाहिए, है कि नहीं? तो ये यस चीज सर। जोड़ देते हैं। सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा ऋचा जी, सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा, बहुत अच्छा, अच्छा बोलती हैं। एक दो क्वेश्चन और आपसे हम जानना चाहेंगे, ठीक है? आपका यस टेम्पलेट को देख के, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके स्टेज आप बताइए, कौन कौन से स्टेज होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेजेस। हम्म सर नहीं आ रहा मुझे अभी ये। कोई बात नहीं, हर चीज जरूरी नहीं किया है, ठीक है? कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? तो एक तो हम लोग मैरी गोल्ड के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क, ठीक है, क्वेश्चन। हम्म। तो आप ये बताओ कि मैरी गोल्ड के, एक तो उसके जो वेराइटी हैं वो कितने टाइप के हैं? वेराइटी का नाम नहीं पूछ रहे, कितने टाइप के वेराइटी हैं मैरी गोल्ड के? सर मेरीगोल्ड टॉल टाइप है, अफ्रीकन टाइप इज टॉल, एंड फ्रेंच टाइप इज डॉर्फ। वेरी जैसे गुड। वैरायटीज लाइक पूसा नारंगी गेंदा, वो किस में आता पूसा है, कि बसंती। अफ्रीका में? अफ्रीकन में आता है। ये अफ्रीकन में है सर। फ्रेंच में जैसे कि बोलेरो है और बटर स्कॉच। वेरी गुड। और आपका ये बताना है कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड का बॉटनिकल नेम क्या है? टेजिटस इरेक्टस। फ्रेंच का? टेजिटस लेटिफोलिया। सर सॉरी, फ्रेंच का नहीं याद आ रहा स्पीसीज नेम। पैट्यूला बोलते हैं ना, PATULA। ओके, टेजिटस प्रोपेगेशन पेट्यूला। कैसे होगा इसका? क्या सर? प्रोपेगेशन कैसे होगा? सर प्रोपगेशन इसका सीड से होता है। दो सीड से रेट बताइए, ढाई सीड रेट बताइए। सर 2 से ढाई केजी पर हेक्टेयर। और अगर नर्सरी लगा के लगाएंगे तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएंगे। अच्छा, इसका अगर हमको ये करना है, राइजनिंग ऑफ सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए। रेजिंग ऑफ सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। सर मैरीगोल्ड तीनों सीजन्स में होता है, खरीफ, रबी एंड जायद। तो सर सबसे पहले तो हम फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए हम पिट्स खोदेंगे, ज्यादा नहीं, 15 to 20 सेंटीमीटर। उसमें काउडंग FYM अच्छे से मिला के छोड़ देंगे। और फिर सर उसके 15 से 20 दिन बाद उसमें अ, सर उसमें बुआई करेंगे सीड से। इसमें कौन सा मेथड होता है? सीड, क्या सर? सीड को कैसे हम डालेंगे? सर सीड को हम लाइन सोइंग भी कर सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग से भी कर सकते हैं। अगर हमको कमर्शियली करना है तो लाइन स्विंग करेंगे कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग करेंगे? आप सर लाइन सोइंग जब भी करेंगे ध्यान, विद। जब भी क्वेश्चन का आंसर दो ना, तो ये ध्यान रखना ना कि हमको घर में गमला में नहीं लगाना है, हमको बड़े हेक्टेयर और एकड़ में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब यस से सर। तैयार करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे ना? यस सर, ब्रॉडकास्टिंग इस करेंगे। मंथ में ब्रॉडकास्टिंग होगा, सर जो रेज ब्रॉडकास्टिंग बेड, इसका रेज बेड में, ठीक है? मंथ बताइए।
आफ्टर खरीफ में करेंगे तो आफ्टर मंथ रेन्स मंथ 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 बताना है, खरीफ रबी और जून जायद यहाँ नहीं चलेगा सर फुल। जून टू जुलाई। मई टू जून, जुलाई में ले जाएंगे, ठीक है। अब जब मान के चलो जब सीडलिंग हो गया, तो उसका जो आगे का प्रोसेस बताओ, ट्रांसप्लांटेड का क्या, कैसे क्या करते हैं, कितने, थोड़ा बताओ। सर उसके बाद सर इसमें स्पेसिंग का ध्यान रखना है। कितने स्पेसिंग सीडलिंग, इसमें कितने month का, कितने उसका सीडलिंग का जो एज रहेगा वो कितना हो जाएगा, तब हम उसको आगे के लिए करेंगे। और इसका हाइट सर बताओ। इसको 4 to 5 लीफ स्टेज पे, यानी कि सर 3 से 4 हफ्ते बाद इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। 1 मंथ। और स्पेसिंग जो होगा इसमें 60 x 45 सेंटीमीटर होगा अफ्रीकन वैरायटीज के लिए। फ्रेंच वैरायटीज के लिए 30 x 45 होगा, या 30 x 15 भी ले सकते हैं डॉग 45 वैरायटीज में। गुने 45, 45 × 45, ठीक है। ड्राफ्ट है, छोटा है इसलिए कम हो जाएगा। और इसका जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा, सीडलिंग का हाइट। हाइट सर अफ्रीकन का तो अप टू 90 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो फ्रेंच होता है उसमें 30 सेंटीमीटर या 30 to 60 भी हो सकता है। 10 से 15 याद रखना है रेंज, ठीक है। ओके। इसमें हमको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में बताओ कि कितना FIM होगा, कितना NPK का होगा पर पर हेक्टेयर। सर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है एनपीके का, बट FYM हम इसमें डाल सकते हैं 8 से 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन, 20 से प्रति हेक्टेयर। 25 टन जाएगा ना, 8 से 10 टन में क्या होगा। ओके सर। इसमें स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस बताओ। कल्चरल प्रैक्टिस में सर इसमें पिंचिंग कर सकते हैं। कब करेंगे, अ, कितने समय बाद, ट्रांसप्लांटिंग के कितने समय के बाद। सर ये तो नहीं पता मुझे। 3 वीक टू 1 मंथ, ठीक है। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट कल्चरल प्रैक्टिस। स्टेकिंग भी होता है डॉग वैरायटीज में, लकड़ी के सहारे बांध देते हैं। हाँ, तो पिंचिंग हो गया, फिर हमारा इरिगेशन हो गया, और हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर हो गया, ये कल्चरल प्रैक्टिस है ना। अच्छा, इसका पेस्ट और डिजीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन, पेस्ट और डिजीज बताइए कौन, और उसका अगर अगर आपको पता हो तो उसका रोकथाम कैसे हो, क्या हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। सर पेस्ट डिजीज तो नहीं मालूम मुझे, गेस मैं करूंगी तो कैटर, पॉटरी माइल्डी हो सकता है इसमें। कैटरपिलर पता है, हाँ सर कैटरपिलर्स। ब्लैक स्पॉट, लीफ स्पॉट, है ना। हम्म। लीफ स्पॉट और ब्लैक स्पॉट को कैसे कंट्रोल करेंगे। सर जो ब्लैक स्पॉट होता है वो बेसिकली एंथ्रेक्नोज फंगस से होता है। तो सर फंगस के लिए हम बिनोमिल या फिर मेटल एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर के डाइथिरान, हिसाब से स्प्रे कर दें। डाइथिरान होता है ना, 0. ओके सर। DITHANE, थियान, डाइथेन M45। डाइथेन, डाइथेन फॉर M45, ओके। हम्म। तो ये सब देख लेना, ओके। चलिए, आपका बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, ठीक है ऋचा जी, अब आप जा सकती हैं। वेरी गुड। थैंक यू सर।